Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the world of mathematics and class second year. And teacher is Hamad Hussain. Today we are going to discuss chapter number 2, and that is differentiation or derivatives. First of all, dependent and independent variables. In differential calculus, we mainly deal with the rate of change of dependent variable with respect to one or more independent variable. Now first we explain the term dependent and independent variable. Let us suppose that y is equal to f of x. Here x is independent and the y is dependent variable. The value of y depend upon value of x. So that's why x is called independent variable and y is called dependent variable. In calculus, we mainly deal with the rate of change of dependent variable, means that rate of change of y with respect to one or more independent variable. In this case, rate of change of y with respect to x, that is called dy by dx. Note, the symbol dy by dx is used for the derivative of y, that is dependent variable, with respect to x, that is independent variable. Here it is not a quotient of dy and dx. Dy by dx is an operator and it is a derivative of dependent variable with respect to independent variable. Normally dependent variable is y and independent variable is x. And dy by dx is not the quotient form, means dy numerator and dx is denominator is totally wrong. It is a derivative of dependent variable with respect to independent variable. Dy by dx is also denoted by y prime. Dy by dx also denoted by y prime. Many mathematicians use different notations for the derivative, like Leibniz used dy by dx or df by dx, whereas Lagrange used f prime of x. Lagrange's use f prime of x and Leibniz used dy by dx or df by dx. Now, how to find f dash of x or dy by dx from the definition of derivative? Its method is also known as ab initio method or by first principle. There are four steps. First step, find fx plus del x. Simply means that replace x by x plus del x and y by y plus del y is your first step. Second step, simplify f of x plus del x minus f of x. Second step, simplify f of x plus x minus f of x. Third step, divided by del x on both sides. And last step, apply del x approaches to 0 on both sides. Right hand side is our answer and left hand side is our derivative. These are the four steps that is normally used to find derivative for by the method of definition or ab initio method or by first principle. Now we will move to exercise 2.1. Exercise 2.1, question number 2. Find dy by dx from the first principle. Find dy by dx from the first principle. Let y is equal to square root of x plus 2. Let y is equal to square root of x plus 2. This is your second part of question number 2, exercise 2. First part of question number 2, exercise 2.1. First, let y is equal to square root of x plus 2. First step, replace y by y plus del y and x by x plus del x. Simply y की जगह replace कर दें y plus del y and x की जगह replace कर दें x plus del x. Second step, subtract y on both sides. Y plus del y minus y
And on the right hand side, x plus del x plus 2 square root can be written as x plus del x plus 2 whole raised to power 1 by 2 minus value of this y. Value of y is square root of x plus 2, that can be written as x plus 2 raised to power 1 by 2. X plus 2 raised to power 1 by 2. This y cancel out with this y, and the right hand side. Always you should take question common from the right hand side. Always you should take, or you have to take question from the right hand question. Take question common from the right hand side. Here question is x plus 2, so we'll take x plus 2 common from the right hand side. From the first expression, when we take x plus 2 common, the remainder is 1 plus del x over x plus 2 minus whole term common, सो रिमाइंडर इज -1। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है इस पॉइंट में कि हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोगों ने कॉमन लेना होता है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 2 होल स्क्वायर रूट, तो हम लोगों ने स्टेप में क्या करना है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट को कॉमन लेना है। तो इसमें से जब x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी पीछे बन जाएगा 1 प्लस डेल एक्स के साथ x प्लस 2 नहीं आ रहा, तो डेल एक्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, वो पावर क्या आ रही है 1 बाई 2 माइनस, और इसमें से ये जब पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। नाउ power is fraction. As we know that if power is fraction or negative, we will use binomial series. If power is negative or in form of fraction, then we will use binomial series. So here we will use binomial series on the right hand side. Left hand side, when y cancel this y, the remaining term is del y, and right hand side we will use binomial series, that is 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial into x square plus so on, and last term is -1. Binomial series again look, 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial into x square plus so on. This -1 cancel out with this one. This one cancel out with this -1, and the remaining we can take del x common. Then the remaining terms we will take del x common. अगर यहाँ से हम डेल एक्स को 1 और 1 कैंसिल आउट होने के बाद अगर यहाँ से हम डेल एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पीछे खाली क्या बच जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा 1/2। 1/2 -1 होता है हमारे पास -1/2, 2 फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। ये हमारे पास आ रहा है जी डेल एक्स होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। जब डेल एक्स हमने एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पीछे हमारे पास बच जाएगा डेल एक्स की पावर 1 और एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ आते हैं आपके पास एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। थर्ड स्टेप, divided by del x on both side, del y by del x, and right hand side this del x cancel by this del x, so the remaining terms are this. And the last step, applying del x approaches to 0. When we applying del x approaches to 0 in this expression, लिमिट del x approaches to 0 लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे तो वो तो बन जाता है dy by dx, और जब राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, इसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो आपके पास पीछे बच जाएगा x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 इन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये पावर 1/2 आ रही है, नीचे पावर आपके पास क्या आ रही है, 1, तो 1/2 नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस, एंड द फाइनल आंसर इज 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2। नाउ एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, from find from first principal derivative of the following expression with respect to independent variable, with respect to independent variable। इसमें मुख्तलिफ किस्म के independent variables आ रहे हैं हमारे पास इसके parts में। first part, ax plus b cube, ax plus b cube,
Here x is independent variable. Ax plus b whole cube. Here x is independent variable. So we will have to solve it by first principle and with respect to x. First part with respect to x. First, let y is equal to ax plus b cube. Let y is equal to ax plus b cube. Step 1. Replace y by y plus del y and x by x plus del x. y की जगह रिप्लेस कर देंगे y plus del y और x की जगह रिप्लेस कर देंगे x plus del x. क्वेश्चन में हमें सच y की इक्वल लेट नहीं था तो पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया लेट y is equal to ax plus b whole cube. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं y की जगह रिप्लेस कर दें y plus del y और x की जगह रिप्लेस कर दें x plus del x. नाउ डेल वाई इधर ही रहने दें और y को उधर ले जाएं या दोनों साइडों पे y से डिवाइड y से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसकी ब्रैकेट ओपन होगी ax प्लस a डेल x प्लस b होल क्यूब. तो ax प्लस b प्लस a डेल x होल क्यूब माइनस y और y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ax प्लस b होल क्यूब. लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था हमेशा आप लोगों ने क्वेश्चन को कॉमन निकालना है इधर से. अब यहाँ हमारे पास आ रहा था ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स. हमने क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी तो इसका मतलब है यहाँ से हमने ए एक्स प्लस बी को कॉमन लेना है इसलिए ए एक्स प्लस बी को अलहदा कर लिया और ए डेल एक्स को अलहदा कर लिया होल क्यूब माइनस और यहाँ तो ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी होल क्यूब अलहदा ही लिखा हुआ है हमारे पास. अब इधर इस स्टेप में ए एक्स प्लस बी सिंगल फर्स्ट टर्म होगी प्लस ए डेल एक्स होल क्यूब. तो इस पे फार्मूला लगा सकते हैं हम ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी. सेकेंडली यहाँ हमारे पास 3r है ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है तो यहाँ हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b² प्लस b क्यूब. आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास a है ए एक्स प्लस बी और b क्या आ रहा है हमारे पास a डेल एक्स. तो इस पे फार्मूला लगा दें a प्लस बी होल क्यूब. तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास a क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b² प्लस b क्यूब. ए एक्स प्लस बी होल क्यूब और ए एक्स प्लस बी होल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा बाकी हमारे पास बच जाएगा 3 ax प्लस बी होल स्क्वायर ए डेल एक्स प्लस 3 ax प्लस बी ए डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस ए डेल एक्स होल क्यूब. आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में डेल एक्स कॉमन आ रहा है. अगर हम इनमें से डेल एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3 a ax प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ डेल एक्स ए की थर्ड पावर थी बाहर निकल गई. यहाँ से जब हम डेल एक्स होल स्क्वायर में से एक डेल एक्स को कॉमन लेंगे तो पीछे खाली बच जाएगा सिंपल डेल एक्स. तो बाकी साथ आ जाएगा 3 a² ax प्लस बी इंटू डेल एक्स. यहाँ था हमारे पास ए क्यूब डेल एक्स क्यूब तो डेल एक्स की पावर कॉमन गई तो यहाँ 3 था तो बाकी रिमेनिंग पावर इसकी कितनी बच गई 2 बच गई. डेल एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया जैसे कि हमारा एम होता है डेल एक्स को हम लोगों ने बाहर निकालना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय डेल एक्स. तो लेफ्ट साइड पे आ गया डेल वाई बाय डेल एक्स. राइट साइड पे ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा डेल एक्स से तो बाकी हमारे पास सेम टर्म आ गए. नाउ स्टेप नंबर 4 टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0. अब इस केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डेल एक्स है लिहाजा हम लोग लिमिट भी लेंगे डेल एक्स अप्रोचेज टू 0. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज करेंगे भी होता y होता z होता तो हम उसको अप्रोच कराते अप्रोचेस टू 0. इस केस में x है तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स अप्रोचेस टू 0. जब लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो टेक लिमिट लेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0. राइट साइड पे भी लेंगे तो जो जो टर्म डेल एक्स वाली हैं उनकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 0. यहाँ डेल एक्स की जगह रिप्लेस हो गया 0. इधर डेल एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह रिप्लेस हो गया 0 का स्क्वायर. और ये टर्म जो होती है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स उसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स. जब ये टर्म 0 होगी तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी क्या होगी 0. तो ये आ जाएगा 3 a ax प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0.
तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा डेल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आता है। नाउ पार्ट नंबर 3, 3t plus 2 whole raised to power minus 2. Students, here t is an independent variable. Here t is an independent variable. First step, let y is equal to 3t plus 2 whole raised to power minus 2. Let y is equal to 3t plus 2 raised to power minus 2. First step, replace y by y plus del y and here t by t plus del t. अब यहाँ हमारे पास x नहीं है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर y की जगह तो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं y प्लस डेल y, तो t की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे t प्लस डेल t। सेकंड स्टेप, डेल y इधर ही रहने दें और y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस y को उठा के क्या करें राइट हैंड साइड पे ले जाओ और इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3t प्लस 3 डेल t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। क्वेश्चन हमारे पास है जी 3t प्लस 2, तो पेयर यहाँ से बना लेंगे हम लोग, 3t प्लस 2 और 3 डेल t एज इट इज आ जाएगा होल रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। अब पावर हमारे पास आ रही है now in form of negative, and if power in form of negative then we will use binomial series. क्वेश्चन हम लोग यहाँ में से कॉमन ले लेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। ये जब यहाँ से कॉमन 3t प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, प्लस इसके साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 3 डेल t बाय 2 होल रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। Both terms same, 3t plus 2 whole raised to power minus 2 and 3t plus 2 whole raised to power minus 2. So taking 3t plus 2 raised to power minus 2 common, and the remaining terms are 1 plus 3 del t over 3t plus 2 raised to power minus 2 minus 1. And here power is negative, so we will use binomial series, which is 1 plus nx. Here n is minus 2 and x is 3 del t over 3t plus 2. 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial into x square plus so on. Here n is minus 2 and x is 3 del t over 3t plus 2. Now del y is equal to 3t minus plus 2 whole raised to minus 2, as it is 1 plus into minus is minus and 3 2s is 6 del t over 3t plus 2 plus minus 2 as it is minus 2 minus 1 is minus 3 and 2 factorial is 2 and 3 del t over 3t plus 2 whole square. Here 3, यहाँ 3 आता है आप लोगों के पास, 1 and cancel out with this minus 1. 1 and minus 1 both are cancel out. 1 और minus 1 both cancel out. ये वाला 1 जो है आप लोगों इस minus 1 के साथ क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा। बाकी बच गया minus 6 del t over 3t plus 2। ये 2 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, cancel out हो जाएंगे। minus and minus is plus 3 and 3 del t over 3t plus 2 whole square as it is। यहाँ जो 3 आएगा ये ऊपर वाला 3 कैरी हो रहा है, यहाँ 3 नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा 3। तो 3 del t over 3t plus 2 whole square, 3t 3 del t whole square over 3t plus 2 whole square, और यहाँ हमारे पास आ रहा है माइनस 6 del t over 3t plus 2। तो यहाँ से हम लोग माइनस 6 को जैसे यहाँ स्प्लिट हुआ है माइनस 2, तो बाकी आप ये देख लें 3 del t over 3t plus 2 है, और ये क्या आ रहे हैं 3 del t over 3t plus 2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इस पूरे को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पीछे क्या बच गया माइनस 2, और ये इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या बच गया 3 टाइम 3 del t over 3t plus 2 की पावर 1।
इस स्टेप में, ये स्टेप के ऊपर आप देख लें, ये आसान सिंपल वे है इसका। नहीं तो इसमें से क्या करें, इसको -6 को इसकी फॉर्म में हम लोगों ने तोड़ना है, -2 इंटू 3t अवर 3t प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। इन दोनों में आप देख लें, ये दोनों टर्म सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, बट फर्क यहाँ वहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर आपके पास आ रही है 2। तो इस पूरे को आप लोग कॉमन ले लें, 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2, तो यहाँ बच जाएगा -2, और इसकी कैलकुलेशन की हमारे पास आ गया 3 और सिंगल पावर बच गई। यहाँ आपके पास आता है -2, ये ऊपर वाला -2 ही कैरी हो रहा है, ये -1 नहीं है, यहाँ आपके पास आता है -2। Third step. अब here independent variable is t, so divided by del t on both side. अब यहाँ जब हम लोगों ने कि del t को बाहर कॉमन निकाल लिया, जब इस स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे तो ये वाला del t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे बच जाएगा del y by del t, और ये पावर -2 है और ये पावर इसकी 1 है, तो ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो -2 -1 और बाकी टर्म क्या आ जाएंगी एज इट इज। Here independent variable is del t, so taking limit when del t approaches to 0. अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप लोगों के पास del t, तो del t को हम अप्रोच करा देंगे 0 के इक्वल। Left side will become limit del t approaches to 0 del y by del t, and right side limit del t approaches to 0 3 t plus 2 -2 -1 is -3, and this thing left hand side will become dy by dx, and right hand side 3t plus 2 raised to power -3 -2 plus 0 -0 and so on. 3 into -2 is -6, and 3t plus 2 raised to power -3 is your final answer. तो ये आपके पास था जी पार्ट नंबर 3। Now part number 5. 1 over a z minus b raised to power 7. Here independent variable is 7. Independent variable is z and power is 7. Let y is equal to az minus b raised to power -7. Az minus b raised to power 7 is in denominator. When it to move to the numerator, then power sign will change. So az 1 over az minus b raised to power 7 can be written as az minus b raised to power -7. First step, replace y by y plus del y, and independent variable here is z. So replace z by z plus del z. First step, subtract y on both side, और इस y को उठा के आप लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे बच जाएगा del y, राइट साइड पे ब्रैकेट ओपन करें, a z प्लस a del z माइनस b रेज टू पावर -7, माइनस ये y जब राइट साइड पे जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी a z माइनस b रेज टू पावर -7। क्वेश्चन है हमारे पास ए जी माइनस बी रेज टू पावर -7, तो याद रखने का वही तरीका, आप लोगों ने ए जी माइनस बी को कॉमन निकालना है। जब इधर से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा प्लस ए डेल जी ओवर ए जी माइनस बी रेज टू पावर -7। अब ए जी माइनस बी रेज टू पावर -7, ए जी माइनस बी रेज टू पावर -7 दोनों में आ रहे हैं, तो होल कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए del z over a z minus b raised to power -7 minus 1. Here power is in negative. So if power is negative, we will use binomial series, and also for the fraction. Using binomial series a z -7 raised to power -7 as it is, और इस टर्म पे हम लोग लगाएंगे binomial series, that is 1 plus nx. Here n is -7 and x is a del z over a z minus b। ये होल टर्म आपके पास क्या कंसिडर होगी x, और ये -7 कंसिडर होगा x के। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर प्लस सो ऑन, और लास्ट में ये वाला -1 एज इट इज आएगा। अब
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, डेल जी इसमें आ रहे हैं सिंगल पावर के साथ, इसमें आ रहा है होल स्क्वायर के साथ, हम डेल जी कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, स्टेप 3 डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल जी। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डेल वाई बाय डेल जी। राइट साइड पे कॉमन लेने के बाद कटिंग हो जाएगी, वन और -1 भी बोथ विल कैंसल आउट, वन एंड -1 बोथ विल कैंसल आउट। The remaining terms ac minus b raised to power -7 a del c by common लेके cancelling, a over a z -7 plus -7 into -7 -1 over 2 factorial a स्केयर a डेल जी होल स्केयर था। तो जब हमने कॉमन डेल जी निकाला राइट हैंड साइड से, तो यहाँ वन बच गया और यहाँ डेल जी की सिंगल पावर बच जाएगी, और ये वन और ये वाला वन बोथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसमें आप देख लें, शुरू से ही हमें पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है, डेल जी। सो टेक लिमिट लेंगे डेल जी अप्रोचेस टू जीरो, डेल जी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट del z approaches to 0 del y by del z। तो लिमिट del z approaches to 0 a z minus b raised to power -7 -7 a over a z minus b plus -7 -7 -1 over 2 factorial a square del z over a z minus b whole square। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको पता है क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास आ रहा है डेल जी, तो इस डेल जी की जगह जब हम लोग जीरो रिप्लेस करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी जी, और ये पावर आ रही है -7, जब नीचे जाएगी तो पावर हो जाएगी +7, और ऑलरेडी एक पावर पड़ी हुई है तो इफ बेसिस आर सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा -7 ए। -7 है यहाँ इसकी पावर, जब नीचे जाएगा तो हो जाएगी ए जी माइनस बी रेज टू पावर 7, वो 7 और ए जी माइनस बी रेज टू पावर 1। तो 7 प्लस 1 आ गया आपके पास 8, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा -7 ए, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी जी। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास डेल z। Thank you, students. If you have any question, any problem, you can ask me every time, any time. Thank you.